Hello everyone, welcome to our today's English class. Students, today we'll do 8th chapter of class 7th of DAV board, and this chapter is actually a poem, The Spider and the Fly by Mary Howitt. And if you have seen in your book, then it's written a fable just below the name of the poem. Now what is this fable? Why this poem is called a fable? Fable is actually students, fable is an imaginary story that ends with a moral. यानी कोई ऐसी story which is not real but it teaches us a lesson. So this poem tells us that how people should not allow themselves to be manipulated by others. This is a cautionary tale against those who use their flattery and charm to disguise their true intentions. Means they have the bad intentions for us, or maybe whatever good words said by those people are not true. Okay, they are not real, but still they speak those words for us, still they praise us. Why? Just to fulfill their selfishness. So in this poem, the spider who will depict the person who is a selfish, okay, and the fly who will listen to his flattery words. So let's read the poem and find out how a spider flatters a fly into a trap. So here you can see the poem starts with, "Will you walk into my parlor?" said the spider to the fly. "'Tis the prettiest little parlor that ever you did spy. The way into my parlor is up a winding stair, and I have many pretty things to show when you are there." "Oh, no, no," said the little fly, "to ask me and is vain." So see, here the spider is offering the fly to walk into his parlor. My parlor. Whose parlor? Spider's parlor. The spider is saying that, "Will you walk into my parlor?" And what is he saying here? He said that it's the prettiest parlor that ever you did spy. तुम आज तक जितने भी parlors में गई होंगी, mine one is the prettiest one. My parlor is the prettiest one. You must not have seen such parlor earlier. The way into my parlor is up a winding stair. वो कह रहा है मेरे पार्लर में जाने के लिए you have to come up the winding stair. Winding stair क्या? वो कोई घर में थोड़ी रहता है स्पाइडर की सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे. अगर आपने स्पाइडर वेब देखा होगा तो इट इज़ इन दिस शेप, राइट. और इस तरीके से जो है मकड़ी का जाला बन जाता है ना, स्पाइडर वेब बन जाता है. तो ये जो राउंडेड शेप है, दिस इज कॉल्ड द वाइंडिंग. ठीक है, गोलाकार जो होता है. एंड दैट इज वाई वो ऊपर चढ़ के जाएगा, 1 step 2 step 3 step. So that's why he said that my parlor is up a winding stair. Now he is saying that I have many beautiful things. ठीक है, वो कह रहा है कि मेरे पार्लर में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तुम वहाँ पर आओगे तो आई विल शो देम ऑल टू यू. But what the fly said? She said, "Oh, no, no. To ask me in is vain." वो कह रही है कि नो नो नो, मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे पार्लर में. मुझे पूछना means it's all is in vain. How vain? Vain means useless. Vain means useless. तो शी इज सेइंग कि मुझे पूछना बिल्कुल बेकार है. यू आर वेस्टिंग योर टाइम टू आस्क मी टू वॉक इन टू योर पार्लर बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू एंटर देयर. नाउ व्हाई शी इज डिनाइंग? वो मना क्यों कर रही है? शी इज सेइंग, "For who goes up your winding stair can never come down again. I am sure you." तो वो कह रही है कि जो भी उन स्टेयर्स पे आज तक गया है वो आज तक उन सीढ़ियों से उतर के नीचे वापस नहीं आया. मीन्स जो भी तुम्हारे जाल में फंसा वो आज तक कभी वापस नहीं आया. तो अब स्पाइडर क्या कह रहा है? सी द स्पाइडर इज नाउ सेइंग, "आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी डियर विथ सोरिंग अप सो हाई." वेरी वेरी मीन्स टायर्ड. कह रहा है कि तुम ज़रूर थक गई होंगी. क्यों थक गई होंगी? विथ सोरिंग अप सो हाई. सोरिंग, सोरिंग मीन्स टू फ्लाई, कि तुम इतना उड़ती हो सारा दिन. तो नाउ यू मस्ट बी टायर्ड. "Will you rest upon my little bed?" said the spider to the fly. तो वो कह रहा है
कि ऊपर एक छोटा सा बेड भी है पार्लर में, तो डू यू वांट टू रेस्ट ओवर देयर। अब देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है देयर आर प्रिटी कर्टन्स ड्रॉन अराउंड, कि वहाँ पर कर्टन्स क्या होते हैं, पर्दे, कि वहाँ पर सुंदर सुंदर पर्दे भी लगाए हैं, बहुत प्यारा बेड भी वहाँ पर लगा हुआ है। इट हैज़ फाइन शीट्स, बहुत अच्छे उस पर मैंने बेड शीट, सॉफ्ट, फाइन हेयर मीन्स, फाइन इज रिटन हेयर, फाइन हेयर मीन्स सॉफ्ट, तो it has soft bed sheets, soft cushions, and I'm sure that you will enjoy there. But what she said, oh no, for I have often heard it said, they never wake again who sleep upon your bed. She said, कि no, I won't come up to your stairs, I won't come and lie in your bed. Why? बिकॉज आई हर्ड, मैंने आज तक यही सुना है, दे नेवर वेक अगेन, वेक मतलब उठना, जागना, तो कह रही है मैंने सुना है, whosoever sleep upon your bed, आज तक जो भी तुम्हारे बेड पर सोया है, he or she never wake again, वो दोबारा कभी उठ नहीं पाया, मतलब वो जो है वहीं पर फंस कर रह जाता है। अब देखो स्पाइडर क्या कह रहे हैं, सेट द कनिंग स्पाइडर टू द फ्लाई, कनिंग चालाक, क्लेवर। अब वो कह रहा है डियर फ्रेंड, what shall I do to prove the warm affection I have always felt for you। वो अब इस लाइन का क्या मतलब है, अफेक्शन होता है लव, अफेक्शन मीन्स लव, तो वो कह रहा है कि आई हैव अ डीप लव, लव हियर मीन्स आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड। ही इज सेइंग कि मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं सच में तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, आई रियली वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड। अब देखो वो नेक्स्ट ऑफर क्या दे रहा है उसको, आई हैव विद इन माई पेंट्री अ गुड स्टोर ऑफ ऑल दैट्स नाइस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंट्री, पेंट्री मीन्स फूड स्टोर आप लोग कह सकते हो, किचन कह सकते हो, ओके, फूड स्टोर और किचन, दैट इज कॉल्ड पेंट्री। तो ही इज सेइंग दैट I have a pantry there above the stairs and it has very good stuff to eat. So I'm sure you are very welcome. Will you please to take a slice? तो कह रहा है कि तुम वहाँ पर आकर क्या उनको टेस्ट करना पसंद करोगी, जो मेरी पेंट्री में जितने भी ईटेबल्स रखे हुए हैं, those all are very nice, means very delicious, very tasty. So will you please come and take a slice? Slice means piece. क्या तुम उनमें से कुछ चीज़ें एंजॉय करना चाहोगी। शी सेड ओ नो सेड द लिटिल फ्लाई, काइंड सर दैट कैन नॉट बी, आई हैव हर्ड व्हाट्स इन योर पेंट्री एंड आई डू नॉट विश टू सी। तो कह रही कि नहीं मैं नहीं आने वाली हूँ, मैंने सब सुन रखा है क्या तुमने अपने फूड स्टोर में रखा है, और मुझे वो सब देखने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम नॉट विश टू सी ऑल दोज थिंग्स इन योर पेंट्री। So now that spider used some other words to flatter the fly. He said, sweet creature. जैसे हम बच्चे को बोल देते हैं ना, sweet baby, cute baby. तो he is saying, sweet creature, you are witty and you are wise. That you are very nice and very intelligent. You are very clever. कि तुम तो बहुत चालाक हो, बहुत समझदार हो. Wise means intelligent. Witty means clever. हाउ हैंडसम आर योर गॉजी विंग्स, गॉजी होता है बेटा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे हम आर पार देख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि योर गॉजी विंग्स आर सो हैंडसम, मतलब बहुत अच्छे हैं, एंड हाउ ब्रिलियंट आर योर आईज, और जो तुम्हारी आईज हैं वो कितनी ब्रिलियंट हैं, दोज आर रियली वेरी ब्रिलियंट। आई हैव अ लिटिल लुकिंग ग्लास अपॉन माई पार्लर शेल्फ, और वो कह रहा है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना, तो आई एम हैविंग अ लुकिंग ग्लास अपॉन माई पार्लर शेल्फ, के ऊपर जो है मैंने एक लुकिंग ग्लास यानी मिरर, लुकिंग ग्लास मीन्स मिरर, वो कह रहा है आई एम हैविंग अ मिरर इन माई पार्लर। इफ़ विल स्टेप इन वन मोमेंट डियर यू शेल बिहोल्ड योर सेल्फ, और वो कह रहा है कि अगर तुम एक बार वहाँ चली गई ना, तुम्हारी नज़रें खुद पर से नहीं हटेंगी, मतलब तुम बहुत खुश होगी ये देखकर कि तुम सच में बहुत प्रिटी हो, बहुत सुंदर हो। आई थैंक यू जेंटल सर, शी सेड, फॉर व्हाट यू आर प्लीज्ड टू से, एंड बिटिंग यू गुड मॉर्निंग नाउ, आई विल कॉल अनदर डे। तो अब फ्लाई क्या कह रही है,
वो उसको थैंक्स कर रही है। थैंक्स भी किस बात के लिए कर रही है? जो उसकी तारीफ़ की गई, ठीक है, उसकी तारीफ़ की ना कि यू हैव ब्रिलियंट आईज, गॉजी विंग्स। तो ही इज सेइंग दैट थैंक्स फॉर ऑल दिस, बट आप जो मुझे बोल रहे हो ना कि मेरे पार्लर में आओ, अब देखो वो लास्ट में क्या बोला उसने, आई विल कॉल अनदर डे। शी इज सेइंग कि मैं किसी और दिन सोचूंगी आपके पार्लर में आने के लिए, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। तो उसकी इस बात का क्या मतलब हुआ कि वो कहीं ना कहीं अपनी तारीफ सुनने के बाद थोड़ी सी खुश हो गई है। यानी देखो, स्पाइडर ने कितनी सारी चीज़ें कोशिश की फ्लाई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, फ्लाई को खुश करने के लिए। उसने बोला मेरे पार्लर में आओ, देयर इज़ अ प्रिटी बेड, देयर आर सो मेनी प्रिटी थिंग्स, कम टू माई किचन, माई पेंट्री। एंड फाइनली जब उस कोई सी चीज़ ने काम नहीं किया तो देन ही व्हाट ही सेड दैट you are so pretty, you are so smart, your wings are so beautiful, you have brilliant eyes, I have a mirror, just have a look upon there। तो ऐसी सब बातें करके फाइनली उसने क्या किया, स्पाइडर जो फ्लाई थी वो कहीं ना कहीं स्पाइडर की बातें सुन के खुश हो गई। और ये हमें किस बात से पता चल रहा है कि वो खुश हो गई? उसने लास्ट में जब बोला ना आई विल कॉल अनदर डे, कि चलो मैं किसी और दिन सोचूंगी आपके पास आने के लिए। Okay, students, so this is half of the poem. We will do next part of the poem in the next video. Till then, read the poem carefully and try to understand it. Okay, have a good day and keep learning with Sandeep Bihan.